Okay, good morning children. Today we are going to solve the last homework which I have given you, exercise D. The exercise D is expressing that read the following passage and fill in the blanks with appropriate form of principal verbs and auxiliary verbs given in brackets. Class, you know that on that day I have told you what are principal verbs. Principal verbs are action verbs like sleep, like sleep, like lie. These are the principal verbs, okay? And auxiliary verbs are helping verbs like is, am, are, was, were. These are auxiliary verbs, okay? So in this one you can see some you have to put the appropriate verbs. They can be principal verbs or auxiliary verbs. So either you have to put the auxiliary verbs or principal verbs, okay? Now let's start solving the question. The first one, the sentence is, the little girl Rima dash on the grass. Okay. And first thing, whenever you are solving some paragraph, दिमाग में फिर से सुन लो, जब भी आप किसी सिंगल सेंटेंस को सॉल्व करोगे तो आप केवल सेंटेंस पढ़ोगे, लेकिन आपको यहाँ पूरा पैराग्राफ सॉल्व करना है। तो जब किसी पैराग्राफ को सॉल्व करना होता है तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने सिंगल लाइन पढ़ लिया और आपने उसकी पूरी मीनिंग, उसकी वर्ब, सारी चीज़ों के बारे में पता लगा लिया। पहले तो हमें ये पता करना है कि इन विच वर्ब इट इज एंड विच वर्ब विल बी सुटेबल टू फिल द होल सेंटेंस, होल पैराग्राफ। पूरे पैराग्राफ में कौन सा वर्ब यूज करना है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें पूरे इस पैसेज को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। Kindly read your paragraph yourself on seeing your book. Okay, I am also reading for you, but you should also read from your book. The little girl Rima dashed on the grass and dashed up the hill to get a view of valley of flower. Her grandmother, before she dashed, always dashed her about the large variety of flowers that dashed there. She always dashed to get a view of valley. She dashed. Manthan, what happened? Kindly be silent, class. Okay, so she dash a curious girl and dash nature. Flower of different colors dash all over the valley. As the wind blew, the dash in the breeze. She dashed just about to climb down the hill when she dashed a puppy dash with pain. Beta, kindly leave and rejoin. If you are not able to see the screen, kindly leave and rejoin, because others are able to see the screen. Children, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Okay. Those who are not able to see the screen, kindly leave and rejoin so that you would be able. Okay. Next is, she quickly dashed it up and dashed home to give it some first aid. Okay. Now I think you are able to understand. अब तुम लोग कहोगे कि मैं पूरे पैराग्राफ को पता कर लिया,
अब तुम में से कोई मुझे बताएगा कि ये पैराग्राफ पता करने के बाद आपको क्या पता चला कि ये पास्ट टेंस में रहेगा या फ्यूचर टेंस में रहेगा या प्रेजेंट टेंस में रहेगा? क्लास रिप्लाई नहीं। उत्कर्षी, उत्कर्षी, are you able to listen me? Kindly बेटा tell what it will be. What is the question? Please repeat. बेटा मैंने पूछा कि इस क्वेश्चन, इस पूरे पैराग्राफ को देखने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया? That this paragraph should be in future, present or past? Ma'am, past. Very good. And how did you find? Ma'am, because here it is written her grandmother always. Yes. मतलब कि before she died, तो मैम मीन्स कि this is past. हाँ वो तो है। चलो मैं तुम लोगों को 2-3 हिंट दे देती हूँ जिससे तुम लोगों को ये पता चल जाएगा। पहला तो ये जो कहानी है, ये क्या है? कहानी। कहानी जब भी होती है वो पास्ट में होती है, पहला रीजन। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है? बच्चों सुनते जाओ कि अगर किसी पैराग्राफ का हमें पास्ट या प्रेजेंट पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? पहला तरीका मैंने क्या बताया? पहला तरीका मैंने बताया आपको कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि वो पैराग्राफ है या फिर कोई स्टोरी है। तो पहली चीज तो क्या पता चल गई कि ये स्टोरी है, ये हो गया इसका फर्स्ट रीजन। दूसरा चीज कि ये पूरी स्टोरी में एक जगह पर लिखा है मंथन, मंथन काइंडली ऑफ योर कैमरा। Why it is happening? Where is Manthan Bhosle? I have removed Manthan. जो बच्चे इस तरीके से शैतानी करेगा मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगी डायरेक्ट। Okay, so next thing that I have told you, first thing, if the paragraph is a story, it means that will be in the past. Okay, the second thing that in this sentence it is written as the wind blew. Blew लिखा हुआ है। Blew क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। इसका फर्स्ट फॉर्म तो क्या होता है? BLOW, blow होता है। blow का सेकंड फॉर्म यूज किया है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? पास्ट है। 2 हिंट आपको मिल गए। ठीक है, तो इन 2 हिंट से आपको पता चल गया द होल पैराग्राफ विल बी इन पास्ट टेंस। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस पैराग्राफ। आफ्टर सॉल्विंग पैराग्राफ we will start studying about the using of the verbs in the strong and weak verbs. Okay, first thing, the little girl Rima danced on this. Okay, the first answer is danced. अब कहोगे कि मैम danced क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो dance ed लगाया है इससे हमें क्या पता चल जाएगा? ये past tense है और past tense में क्या होता है? किसी भी verb की second form यूज की जाती है। तो dance का second form होता है danced। तो हमने क्या लिख दिया? danced on the grass। and run की second form क्या होती है? run, ran और run। ठीक है, ये होगी इसकी सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग द सेकंड आंसर इज not sharing. Is it now class? Okay, the first answer is danced। अभी मैंने क्या बताया कि ed क्या होता है? जोड़ देते हैं तो वो उसका सेकंड फॉर्म बन जाता है, इसलिए यहाँ पे डांस का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। एंड रन का सेकंड फॉर्म क्या बताया मैंने? रैन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रैन। ओके, रैन अप द हिल टू गेट अ व्यू ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स। हर ग्रैंडमदर बिफोर शी died. Died is also the second form of die. Die means मर जाना। Always, told,
Told is also the second form. Told her about the large variety of flowers that grew. Grew is the second form of grow. Okay class? Grow there she always desired. She always desired to get a view of valley. She, अब यहाँ देखो ये important question है, यहाँ पे लिखा है she dash be a curious girl. इसमें आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है be. अब be के तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, is होता है, was होता है, were होता है, am होता है, लेकिन आपको she के लिए यूज करना है। तो she के लिए कौन सा यूज होगा? अब पूरा सेंटेंस पास्ट में है, तो बताओ कौन सा होगा? Was. Very good. She was. क्योंकि ये क्या है? पास्ट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो we will use is. Okay. She was a curious girl and second form of love is loved. Loved nature. Flowers of different colors bloom. Bloom का second form bloomed. Okay. Bloomed all over the valley as the wind blew. They sway का second form swayed. Swayed in the breeze. She was. B के लिए आप क्या लगाएंगे हम? Was. She was just about to climb down the hill when she heard. When she Manthan, what happened? Now please be silent and rectify your mistakes. Next one. Yes. मैम सॉरी मैम वो मेरा फोन बार-बार हैंग हो रहा है इसलिए पता नहीं क्या हो गया। Okay, it's okay. Next time please keep it in your mind that it is your class. Okay? Okay class, listen to me. Manthan, please kindly put your attention on your book. Next, 12, 13th one is when she heard a puppy. अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो वेल लिखा हुआ है वेलिंग होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्ड वेलिंग होगा। तुम लोग कहोगे कि मैम यहाँ पे वेलिंग क्यों होगा? अब यहाँ पर क्या है बच्चों? उसकी सिचुएशन बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? उस पप्पी की सिचुएशन बताई जा रही है, ठीक है। और पप्पी के जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए हमें पप्पी को डिस्क्राइब करना है। पप्पी को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म वर्ब के साथ यूज करेंगे। जब भी हमें इसका मतलब क्या होगा? इसका हिंदी में मतलब होगा करता हुआ। इसका क्या मतलब हो जाएगा? करता हुआ। अब वेलिंग का क्या मतलब होता है? रोना, ठीक है। वेलिंग का मतलब होता है रोना, और वेलिंग का मतलब रोना हो जाएगा तो रोते हुए। वो क्या कर रहा था? दर्द में रो रहा था। कौन? पप्पी वॉज। पप्पी वॉज वेलिंग, रो रहा था, कराह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा वेलिंग। So the next one, she quickly picked. The second form of pick is picked. Picked it up and ran.
The second form of run is ran. Ran home to give it some first aid. So the D has been completed. Now we will study about strong and weak verbs. What are strong and weak verbs? There is a simple way to find out whether a certain verb is weak or strong. In the past tense form of a verb, if there is a final D or T which is not there in the present tense, it is called a weak verb. It means those verbs, they uses D or T. It means दो D और T अगर कोई भी वर्ब यूज करता है अपना पास्ट टेंस बनाने के लिए, तो उन सारे वर्ब्स को हम वीक वर्ब्स बोलते हैं. जैसे कि आपने स्लीप देखा होगा. स्लीप इज अ वर्ब. इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट. ओके, हमने क्या यूज किया? टी यूज किया. थर्ड फॉर्म क्या होता है? इट इज ऑल्सो स्लेप्ट. ठीक है, तो ये क्या होता है? यहाँ पर टी हमने यूज किया है. ऐसे ही ईडी हम यूज करते हैं. जैसे हमने लिया डाई. डाई मतलब होता है मरना. नाउ वी विल पुट ए डी एट द लास्ट ऑफ दिस वर्ड, सो इट विल बिकम डाइड. एंड इट्स थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डाइड. We have used D, and in this word we have used D to make the past and make the past participle. Okay, when the verbs uses D and T to make its past and past participle, those verbs are called weak verbs. Did you understand, class? Class, did you understand? Kindly reply me. Okay. Yes. So in this one there are many examples are given in your book. Kindly remember and learn them. Children, they are very important to learn. Like acquire. Acquire means to obtain something. Address means to call someone's name, to call someone, to give someone. Next one, the bug, bed, cancel, damage, deal. Many words are given whose past tense and past participle both are made with the help of suffix D and T. So like keep है, keep का क्या हो जाता है? kept और kept. लैंड का क्या हो जाता है? लैंडेड, लैंडेड. सो इस तरीके से कुछ ऐसे वीक वर्ब्स होते हैं. ठीक है, अब कुछ हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे. ऐसे वर्ब्स जो ये डी और टी से मिलकर नहीं बने होते, बल्कि उनका आपको पर्सनली लर्न करना पड़ेगा. जैसे होता है आपका अराइव. लेट मी गिव यू 2 or 3 एग्जांपल, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, या आई नो दैट ऑल्दो इट इज गिवन इन योर बुक, बट आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन यू सो दैट it will be easy to learn for you all. Class, these are main verbs which are given in your book. Okay, those who are given in your book, they are simple verbs, and they will come in your use in your daily life, like awake, arise, blow, choose. These are some words those you feel that they are very needy in your life to make your sentences, to create your sentences. So whenever you have to make the sentences, some small verbs you would need, and these verbs are given in your books. So it's my recommendation, it's my personal advice to kindly learn all these verbs so that you will feel that this will be helpful in your life. Okay, so let me give you one example. It is the dig. Dig means क्या होता है? खोदना. Excavate. Dig means excavate, मतलब खोदना. ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया? इसका सेकंड फॉर्म होता है क्या? dug. तो इसमें क्या हो गया? इसका फॉर्म चेंज हो गया. क्या हो गया? इसका फॉर्म चेंज हो गया. जब वर्ब्स का फॉर्म चेंज हो जाता है तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं. जब वर्ब्स का फॉर्म चेंज नहीं होता, बस हमें उसमें ईडी और टी लगाना होता है, तो वो वीक वर्ब्स होते हैं. ऐसे ही जैसे आपका रिंग है. रिंग है, रिंग का क्या हो जाएगा? रैंग.
and the third form is rung. So ये ऐसे verbs हैं जिनका फॉर्म चेंज हो जा रहा है. आपने देखा इनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चेंज हो जा रहा है. So these are strong verbs. And those who uses V and T, they are weak verbs. Okay. Now what is there left in this book? Let's see. Correct use of some verb. Okay. These are some examples which are given. Sometimes you would feel that you are confused about using the verbs and the form of the adjectives of the same verb. Do you know, class, I have told you on that day that some of the verbs are also used as adjectives. Did you remember? Yes, ma'am. हाँ, मैंने उसमें बताया था ना कि कुछ ऐसे verbs होते हैं उनका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो किसकी तरह यूज किया जाता है? एडजेक्टिव्स की तरह यूज किया जाता है. बताया था. अब उसी में से कुछ ऐसे भी हैं जिनका यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह है. अब मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, अदरवाइज आप लोग पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकोगे. ठीक है, अभी मैं केवल पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बता रही हूँ. जो ईडी वाला फॉर्म होता है ना उसके बारे में बता रही हूँ. और कुछ आईएनजी वाले फॉर्म्स होते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव्स की तरह यूज होते हैं. जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को वेलिंग वर्ड बताया था ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. आईएनजी लगा है ना, आईएनजी का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और ईडी का मतलब पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल तो जानते ही हो, जैसे गो का गॉन होता है, डाई का डाइड होता है. मतलब उनका आप लोगों को लर्न रहता है. लेकिन अगर किसी भी वर्ब के बाद में आईएनजी जुड़ा हो और वो एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, ये याद रखो. ये तुम लोगों को अभी कुछ दिन बाद जब मैं नॉन फिनाइट्स वर्ब पढ़ाऊंगी तब मैं आप लोगों से फिर पूछूंगी इसके बारे में. तब मत कहना कि मैम आप लोगों को मैं बताया ही नहीं है. ठीक है, पार्टिसिपल के बारे में मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत पहले ही बता दिया है. थोड़ा बहुत हम लोग जब नॉन फिनाइट पढ़ेंगे, नॉन फिनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे तब हम लोग और जानेंगे इसके बारे में. क्लास आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना बच्चों. ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है. अभी तो खैर है मेरे पास टाइम. अभी मैं आप लोगों को 10 मिनट्स का टाइम दूंगी सो दैट यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस व्हाट यू आर नॉट फीलिंग easy to know. Okay, some of the verbs are given by which you have to decide that they are verbs or adjective. Okay, so जैसा पहले दिया हुआ है use of born and gone. The first example is given use of B-O-R-N-E. B-O-R-N. Look. Two words are given. The meanings are same, but their uses are different. How we will use it? Let's see some examples. You would be able to understand. Like bear. Bear का मतलब होता है सहना बच्चों. क्या होता है? सहना. ठीक है. बियर जो होता है, ये जो वर्ड है सहना, या फिर इसको हम लोग जन्म देना भी कहते हैं. ठीक है, बियर का दो मतलब होता है. कौन कौन सा? पहला जन्म देना और दूसरा होता है सहना. मतलब किसी चीज को ले जाना या कैरी करना. समझ गए होगे तुम लोग. जैसे नहीं कहते हैं आई एम नॉट गोइंग टू बेयर दिस, मतलब कि अब मेरे लिए क्या है? सहनीय नहीं है. मतलब मैं इसे और कैरी नहीं कर सकती. आप कोई भारी सामान ले जा रहे हो और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा भारी, बहुत हैवी है, तो आप क्या कहोगे? आई एम नॉट एबल टू बेयर इट एनीमोर. मतलब मैं अब इसे और नहीं उठा सकती, मैं इसे और कैरी नहीं कर सकती. तुमने ये चीज़ बोला तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे लिए? बेयर का दो वर्ड हो गया, दो मीनिंग हो गई. ठीक है, अब दोनों के जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं. हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग? ईशा, व्हाई आर यू स्पीकिंग? Listen, so it is there and it is also there. दोनों का मतलब अलग अलग है. अब इन दोनों के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को देख लेते हैं. ठीक है, द सेकेंड फॉर्म ऑफ बेयर इज बोर and its second form is also
birth. So there is no confusion between the use of second form of these verbs. अगर हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा तब तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म का यूज करने की बात आ गई तो एक जिस बेयर का मतलब होता है टू कैरी, वी इट इज BORNE, ओके, एंड बेयर जिसका मतलब होता है टू गिव बर्थ, इसका क्या हो जाएगा BORN। आया समझ में? आप लोग ज्यादातर यूज करते होंगे कि गांधी जी वॉज बॉर्न, लिखते हो ना, गांधी जी वॉज बॉर्न लिखते हो, सॉरी, तो ये लिखते हो, इसका क्या मतलब होता है? वो पैदा हुए थे। इसका क्या मतलब होता है? पैदा हुए थे। और इसका मतलब लाइक the can was heavy, it was not worthy to be born. I have given you the example. Like the can was very heavy. Heavy था, can बहुत heavy था, इसलिए वह कैरी करा नहीं जा सका। क्या हो गया कि इसलिए वह कैरी नहीं किया जा सका, बोर्ड नहीं किया जा सका। आया समझ में? क्लास, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इट? About this, any doubt about this? No, ma'am. Okay, so let me start the next one. Let me switch the next one. एक ये कंफ्यूजन हमने आपकी दूर कर दी। दूसरे कुछ और वर्ब्स भी हैं बच्चों जिनमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। अब हम दूसरे वर्ब की ओर चलते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही कंफ्यूजन होता है। कुछ दो चार हम कंफ्यूजन वाले पढ़ लेंगे तो दे विल बी इजी। ओके, नेक्स्ट दैट इज यूज ऑफ फेल। अब यूज ऑफ फेल जो है ये दो तरीके से यूज होता है। पहला वर्ड की फेल का जो फेल जो है वो एक पास्ट टेंस है। ये जो वर्ड फेल देख रहे हो ये पास्ट टेंस है। किसका? फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। ठीक है, और फॉल का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फेल। ओके, और इसका एक और होता है फेल, फेल, इसका भी सेकंड थर्ड फॉर्म भी फेल होता है। ठीक है, अब फॉल का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? फेल होता है। लेकिन फेल वर्ड जो है ये अपने आप में भी एक पॉजिटिव वर्ब है। इस फॉल का मतलब तो गिरना होता है, तो अगर इसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे गिरा, गिरा। ठीक है, और ये फेल अगर अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ब भी है तो इसका सेकंड फॉर्म होता है फेल्ड, फेल्ड। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इस फेल्ड का मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, फेल इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, इट इंडिकेट टू कॉज समथिंग टू फॉल। अब ध्यान से सुनो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऊपर वाले का मतलब होता है गिरना, ठीक है, और नीचे वाले का मतलब होता है गिराना। फिर से सुन लो, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम फेल का मतलब मैम गिरा दिया। हाँ बेटा, जैसे फेल का मतलब होता है गिरना। देखो ये ना फॉल, ये जो वर्ड है फॉल, इसका ज्यादातर यूज हम एक वर्ब के साथ करते हैं, एक एडजेक्टिव के साथ करते हैं, और वो एडजेक्टिव है आपका ऑफ। ये याद रखना कि जब कोई चीज किसी चीज से गिरती है, जैसे मैंने कहा कि बच्चा छत से गिर गया, आया समझ में? सुनो ध्यान से, अगर मैं कहूंगी कि बच्चा छत से गिर गया तो ये आपकी हो गई छत, ये हो गई आपका ग्राउंड। तो छत से गिरा है ना, तो यहाँ पर छत के लिए हम टेरेस यूज करेंगे। द बॉय गिर गया है ना, तो फेल ऑफ फ्रॉम,
सॉरी, अगर हम फेल के साथ ऑफ लगा दिया तो हमें फ्रॉम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधे लिखेंगे द चाइल्ड फेल ऑफ टेरेस। ठीक है, तो ये जो फेल ऑफ है, जो फॉल ऑफ है, इसका मतलब होता है किसी चीज से गिरना, और इसका मतलब होता है गिराना। आया अंतर समझ में? गिरना गिराना, गिरना गिराना, अंतर समझ लो। गिरना मतलब कोई चीज अपने आप गिर गई, और गिराना मतलब हम गिरा रहे हैं। अगर हम पेड़ों को गिराते हैं तो क्या हो जाएगा? फेल यूज होगा। ठीक है, और फॉल मतलब अगर पेड़ खुद गिर गया तो वो फॉल ऑफ हो गया। आया अंतर समझ में? यस मैम। और एक वर्ड हमने और गलती कर दी है जो अभी तक नहीं बताई मैंने। ये फेल नहीं होता, ये होता है फॉलन। ठीक है, मेरे को गलती हो गई मेरे से, ये हो गया फॉलन, ये फॉल नहीं, फेल नहीं होता है। ठीक बच्चों, कभी कभी टीचर भी भूल जाता है। चलो, ये आपका फॉलन होगा। I was using the wrong word. Okay, so this is fallen. तो ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गिरना, और इसका मतलब क्या होता है? गिराना। अगर वुड कटर पेड़ों को गिरा रहा है तो उसके लिए हम फेल का यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज कहीं से गिर रही है, खुद गिर रही है, तो वो क्या हो जाएगा? फॉल। वहाँ पे फॉल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कोई चीज ऊपर से गिर रही है तो वहाँ पे फॉल यूज करेंगे, कोई चीज गिराई जा रही है तो उसके लिए फेल यूज करेंगे। So I think you are able to understand. Class, do you have any doubt about this? No ma'am. No. Okay. Next is only 5 minutes are left. Class, like this, use of hand and hung, use of lie, use of rise and raise, use of sa. So these will be told tomorrow. Now please kindly let me know about any doubt of verb. Any doubt in your verb, you can ask me right now. Thank you.